Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic is about adrenal gland and gonads from chapter 18 Chemical Coordination for class 2nd year Biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to understand the principal action of the adrenal gland. That is, we want to discuss about the hormone released by the adrenal glands and also discuss about their diseases. And also we have to discuss about the principal action of gonads, which hormone are released by the female gonad, and also discuss about the hormones which are released by the male gonads. Female gonads basically ovary and the male gonads are testes. Now first we have to discuss about the adrenal gland, which is present on the kidney. It has two parts, adrenal cortex and adrenal medulla. This is the adrenal gland which is present on the kidney, and cross section of the adrenal gland consists of two parts. One is cortex and other is medulla. So this is the outer region, that is the cortex, and the inner side medulla. So we have to discuss the hormones which are released by the adrenal cortex and also discuss about the hormones which are released from the adrenal medulla. Now first we have to discuss the hormones which are released by the adrenal medulla. It produces two types of hormones, epinephrine and non-epinephrine. Both these hormones are produced during the stress condition, and it is controlled under the sympathetic nervous system, which is a part of the autonomic nervous system. During stress condition, over autonomic nervous system control, and the part which is involved of the autonomic nervous system is sympathetic nervous system. Both hormones play opposite role, but they support to each other. How it can control the body metabolism under the stress condition? Now we have to discuss about it. These hormones are epinephrine and non-epinephrine. First, we discuss about the epinephrine. Epinephrine is responsible to increase the blood flow during stress condition, and it also dilates the blood vessel, which have the ability to flow the blood directly involved in the emergency situation. Now during stress condition, this epinephrine is responsible to release the ACTH hormone, which is secreted from the pituitary gland. Adrenocortical trophic hormone is responsible to increase the metabolism of the body, and it works under the stress condition. So this hormone, basically epinephrine, is responsible to control the metabolism of the body under the stress condition. Now the non-epinephrine basically decrease the blood flow and constrict the blood vessels. It also reduce the blood flow to the region which are not involved in the emergency, for example digestive system. तो ये बेसिकली दोनों हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ये आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन में प्रोड्यूस होते हैं. एक का काम यह है कि वो आपकी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर रहा है, कि जिन ऑर्गन्स को ज़्यादा ब्लड फ्लो, जैसे हार्ट को चाहिए, मुख्तलिफ जगहों को ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होगा, तो उधर क्या होगा, एपिनेफ्रीन इंक्रीज़ कर देगा ब्लड फ्लो. और जहाँ पे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पे ब्लड फ्लो जब इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ पे कम चाहिए तो वहाँ पे डिक्रीज़ कर देगा.
जहाँ पे ब्लड वेसल्स के डायलेट करेगा ताकि ब्लड फ्लो इजीली इमरजेंसी सिचुएशन पे उन ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो कर जाए, और जहाँ पे नहीं ज़रूरत वहाँ पे उसको क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। और ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन जो है, जो आपके पास एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ACTH वो सेक्रीट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन जो है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। और इसी तरह क्या ये जो नॉन एपिनेफ्रिन है ये रिस्पॉन्सिबल है कि ब्लड फ्लो को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो क्या है, वहाँ पे ब्लड की जो सप्लाई है उसको कम कर देगा, ताकि जो है बाकी जगहों पे जो ब्लड की ज़्यादा मसल्स में ज़्यादा ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा जो है वहाँ से पास और एनर्जी प्रोवाइड हो, मेटाबॉलिज्म का रेट ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा। तो ये तो था अबाउट द एड्रीनल ग्लैंड के जो आपके पास एड्रीनल मेडुला से कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। फर्दर अब हम इसके जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स को डिस्कस करते हैं। The hormones which are produced by the adrenal cortex are called cortical hormones. These cortical hormones are three types: glucocorticoid, mineralocorticoid and androgen. जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड है इसका नाम ही जाहिर कर रहा है कि इट मेंटेन द ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन। इन द सिमिलर वे मिनरल कोर्टिकॉइड जो हार्मोन है बेसिकली इट मेंटेन द मिनरल या आयनिक लेवल ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन। और तीसरे नंबर पे हमारे पास एंड्रोजन जो है वो रिलीज़ होता है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन इज रिलीज बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स इन बोथ मेल एंड फीमेल। आपकी बॉडी के अंदर जो है एंड्रोजन क्या है, वो क्या मेल एंड फीमेल दोनों में क्या है, बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है तीसरा जो एंड्रोजन है वो सेक्रेट होगा एड्रीनल कॉर्टेक्स से मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर। लेकिन इसका जो प्राइमरी एक्शन होता है वो किस पे, एंड्रोजन का प्राइमरी एक्शन क्या है, टेस्टिस पे एक्ट करता है। ये बेसिकली क्या है, मेल हार्मोन है जो कि किस पे एक्ट, जो किस में प्रोड्यूस होता है, मेल में प्रोड्यूस होता है, और इसकी प्रिंसिपल साइड जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस पर ये एक्ट करता है। तो ये तो था आपके पास एड्रीनल ग्लैंड का जो हिस्सा है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, जिससे क्या है मुख्तलिफ हार्मोन्स, 3 किस्मों के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ आयंस हैं और ग्लूकोज लेवल है उनको क्या करते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में कंट्रोल करते हैं। और जो है ना जिसकी वजह से क्या है इमरजेंसी कंडीशन में हमारा जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है या बॉडी जो है वो नॉर्मल वर्क कर सकती है। फिर फर्दरमोर अगर हम देखें, अगर हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकॉइड या मिनरल कोर्टिकॉइड जो है लेस अमाउंट अंडर सेक्रीशन में या लोअर सेक्रीशन में प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग इमरजेंसी की सिचुएशन, देन दिस डिजीज़ इज कॉल्ड द एडिसन डिजीज़। और इस डिज़ीज़ की वजह से क्या होगा, जो बंदा परेशानी में है या स्ट्रेस कंडीशन में है वो दिस पेशेंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू विथस्टैंड द स्ट्रेस कंडीशन। वो जो है वो स्ट्रेस कंडीशन को जो है फेस नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानी या मुश्किलात का सामना होगा ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन, एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज एडिसन डिजीज़। और ये कब होती है, जब ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरल कोर्टिकॉइड जो है वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो। इसी तरह अगर हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरल कोर्टिकॉइड जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विच क्या होगा जब एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन हो जाएगी, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड एंड विच लीड्स टू द डायबिटिक। जब आपके पास जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड है, मिनरल कोर्टिकॉइड है वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो एक्सेस ब्रेक डाउन हो जाएगी प्रोटीन की, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज़, एंड दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड द कुशिंग डिजीज़। और इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कुशिंग डिजीज़ कहते हैं। तो अगर ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन जो है अगर तो इसकी लेस अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारे पास एडिसन डिजीज़ है। ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन जो है वो आपका ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर भी क्या है आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से डायबिटीज़ भी होगी, और जिसको हम क्या कहेंगे, कुशिंग डिजीज़ कहेंगे। फर्दर मोर ये बात आपने याद रखनी है कि एंड्रोजन इज़ द मेल हार्मोन
विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ये जो एंड्रोजन की हमने कहा बेसिकली जो अभी हमने पीछे अभी डिस्कस किया था, और उसमें मैंने आपको ये पहले बताया कि ये क्या है, ये मेल हार्मोन है। इसकी प्रिंसिपल साइट जो है, प्रिंसिपल साइट कौन सी है, टेस्टिस है, जिस पर ये वहाँ पर क्या करता है, ये एक्ट करता है। तो बेसिकली दैट्स व्हाई दे आर द मेल हार्मोन। और इसका जो मेन एक्शन है वो क्या है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रफनेस ऑफ द स्किन एंड स्ट्रेंथन टू द मसल। दैट्स वाई मैन हैव अ टफ स्किन। इसकी वजह से जो है, जो मेल है उनकी जो स्किन होती है वो जो सॉफ्ट नहीं होती बल्कि हार्ड होती है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एंड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वो ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रफनेस ऑफ द स्किन एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथन ऑफ द मसल। जो मेल्स के हैं वो मसल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये तो था एंड्रोजन के बारे में। अब फर्दर मोर जो है, अब हम गोनेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो है, जो अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल की हम बात करेंगे, तो जो गोनेड्स आपके फीमेल के में प्रेजेंट है वो ओवरी हैं, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, और मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम ओवरीज को डिस्कस करते हैं। दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब हम इनका फंक्शन देखते हैं कि सबसे पहले एस्ट्रोजन का फंक्शन देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द रैपन फॉलिकल्स। अब बेसिकली क्या होता है कि जो ओवरीज के अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो के क्या करते हैं, वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिनको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। और वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है, रैपन फॉलिकल्स है। फॉलिकल सेल्स मौजूद हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन। अब क्या होता है, दी वॉल्स ऑफ दी ओवरीज फ्रॉम द सेल विच एक्यूमुलेट एंड फॉर्म्स फॉलिकल। जो आपके पास जो ओवरी की बेसिकली जो वाल है, जब वो क्या हो जाती है, वो रैपन हो जाती है। रैपन से मुराद ये है कि वो हार्डन होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो क्या करती है, एक्यूमुलेट करती है, विच एक्यूमुलेट एंड फॉर्म्स द फॉलिकल्स। उसकी वजह से जो आज स्पेशलाइज टाइप के जो स्पेशल सेल्स बनेंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, रैपन फॉलिकल्स बोलेंगे, एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग द हार्मोन विच इज़ नोन एज एस्ट्रोजन। These follicles start to produce estrogen during the growth, and then these mature follicles give rise to the female egg. और जब ये प्रोड्यूस करती है हार्मोन एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करेगी ड्यूरिंग ग्रोथ, और जब ये मेच्योर फॉलिकल्स आगे ओवरी से आगे मूव करेंगे, और यही आगे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एग। एग रिलीज भी इनकी फॉलिकल्स के जब मेच्योर होती हैं तो ये एग रिलीज़ करती हैं। जो आपके मेच्योर फॉलिकल्स हैं उनसे क्या रिलीज होता है, फीमेल एग रिलीज होता है। और ये बात याद रखनी कि ये बेसिकली जो ये रैपन फॉलिकल्स हैं, ये है क्या चीज़, ये क्या है, वॉल्स ऑफ द ओवरीज फॉर्म द सेल्स विच एक्यूमुलेट एंड फॉर्म फॉलिकल। मतलब क्या है कि ओवरीज की वॉल्स में क्या होते हैं, सेल्स का गुच्छा बन जाता है, जिसकी जो कि क्या हो जाएंगे, वो जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स कहते हैं। एंड दिस फॉलिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन। और जब वो प्रोड्यूस करेंगे एस्ट्रोजन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। वो ग्रोथ के लिए जो है, फीमेल बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर उसने डेवलप करना है। फिर उसके बाद यही मेच्योर फॉलिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द एग इन फीमेल। फर्दर हम देखते हैं इससे क्या होता है कि फीमेल के अंदर बॉडी के अंदर क्या ये जो है डेवलप करती है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होगी, जो है जारी बात है उनकी जो आप ये समझें उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है, उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, वो ड्यू टू जो उनका फीमेल सेक्स हार्मोन है वो कौन सा, एस्ट्रोजन है, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर उनके अंदर डेवलप होंगे। उनकी आवाज़ जो है उसमें भी चेंज आएगी, उनकी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट होगी। इसी तरह जो है हेयर्स जो है हिडन पार्ट्स पर, हिडन बॉडी पार्ट्स पर आएंगे, और एस्ट्रोजन जो है वो आल्सो जो है क्या करके डेवलप वॉल ऑफ द यूट्रस एंड रिपेयर दैम। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन जो है जो यूट्रस की वॉल को रिपेयर भी करेंगी और साथ साथ डेवलप भी करती हैं। और इसी तरह वो जो सेक्स डिज़ायर है उसको भी एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कंट्रोल करेगा। और ये जो एस्ट्रोजन है बेसिकली कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ओवरी से रिलीज़ हो रहा है। और ये क्या करता है कि ये जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो फीमेल बॉडी के अंदर चेंजेस आती है, वो बेसिकली किसकी वजह से आती है, एस्ट्रोजन की वजह से आती हैं। और उस जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जितने भी डेवलप्ड होते हैं वो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से
डेवलप होंगे। अब फर्दरमोर हम देखते हैं कि ओवरी में अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हो जाती है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इसका मतलब है लुटेनाइजिंग हार्मोन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरिंग द फॉलिकल्स एंड हेल्प टू रिलीज द एग। जब आपके पास एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हुआ तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब जारी बात है पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने वर्क किया और वो फॉलिकल्स को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि एस्ट्रोजन बॉडी ये फॉलिकल्स क्या है एस्ट्रोजन को रिलीज़ करेंगे। जब एस्ट्रोजन जब रिलीज़ होंगे तो जाहिर बात है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। फिर क्या होगा कि जब इससे की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है वो आपका क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो फॉलिकल्स को क्या करेगा, मैच्योर करेगा एंड हेल्प टू रिलीज द एग। और वो क्या करेगा, जो फॉलिकल्स हैं उनसे क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन का क्या मतलब है कि जब फीमेल ओवरी से एग रिलीज होता है देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ओवुलेशन एंड दिस प्रोसेस हैपन व्हेन द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, जब क्या हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाए और एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाए और जिसकी वजह से लुटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स को क्या कर देगा, मैच्योर कर देगा और वो फॉलिकल्स इजीली जो है वो रिलीज कर देंगी एग को। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। और जो पीछे जो फॉलिकल्स बिहाइंड जो रह गए जिनसे एग रिलीज नहीं हुआ, द फॉलिकल्स लेफ्ट बिहाइंड, जो फॉलिकल्स जो लेफ्ट हैं जो पीछे बच गए हैं, then it is converted into a yellow colored glands called the corpus luteum। जो फॉलिकल से जिन फॉलिकल से एग रिलीज हो गया उससे हम कह देंगे ओवुलेशन होगी और वो क्या हो जाएगा, बाद में वो क्या हो जाएगा, जारी बात है वो ख़त्म हो जाएगा स्ट्रक्चर। लेकिन जो फॉलिकल्स बच के जहाँ से एग रिलीज नहीं हुआ then they are converted into a yellow colored gland which is called the corpus luteum and this corpus luteum is responsible to produce the progesterone। और इस कार्पस लुटियम की वजह से जो है वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। अब हम सेकंड हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरोन फंक्शन क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट द एफएसएच। ये भी जो प्रोजेस्टेरोन है वो बेसिकली क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरिए क्या करेगा, जो हार्मोन है उसकी इनहिबिट करेगा ताकि नए फॉलिकल सेल्स फॉर्म ना कर सकें। दैट्स वाई जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं दे हैव द प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं और फॉलिकल रिलीज हो जाता है देन दे गेट मैच्योरेशन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग प्रोडक्शन और जो जिसकी वजह से एग प्रोडक्शन होगी, ओवुलेशन होगी। लेकिन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देगा, फॉलिकल से जो है वो मैच्योर ही नहीं होंगे, नए फॉलिकल्स बनेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, एग रिलीज नहीं होगा। तो बेसिकली बर्थ कंट्रोल का भी यही फंक्शन है कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, जो मेडिसिन हैं, उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन से जो है मेडिसिन के अंदर प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर दें ताकि जो नए फॉलिकल सेल्स है वो ना बन सके और एग रिलीज ना हो सके और ताकि बर्थ को कंट्रोल किया जाए। फिर इसके बाद जो है प्रोजेस्टेरोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैस्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्रस वाल। अब बेसिकली क्या है कि जो यूट्रस की वाल है उसकी वैस्कुलराइजेशन हो जाती है। उसका मुराद ये है कि यूट्रस की वाल को ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। अब क्या है कि यूट्रस की वाल जो ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स इधर ज़्यादा हो जाएंगी जिसे हम वेस्कुलराइजेशन कह रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ज़ैगोट यहाँ पे आगे इम्प्लांट हो जाएगा और जैसे ही ज़ैगोट इम्प्लांट होगा यूट्रस की वाल के साथ देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन हो जाएगी और जैसे ही ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो खुद जो है वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है जिस ताकि जो है प्रेगनेंसी मेंटेन रह सके। और अगर क्या हो एट एनी स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी लैक ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, अगर तो किसी भी स्टेज पे प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम हो जाए देन दे लीड्स टू द मिसकैरेज या एबॉर्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो प्रेगनेंसी का जो
कि कोई सी भी स्टेज है जो फीटस है वो क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा या उसकी एबॉर्शन करनी पड़ जाएगी। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, और अगर क्या होता है प्रेगनेंसी अगर अकर नहीं करती अंडर दी, फिर क्या होगा, दो यूट्रस की जो वैक्यूलराइजेशन है, अब वैक्यूलराइजेशन नहीं होगी बल्कि क्या होगा, बिकम रफ एंड ब्लड वेसल्स रिलीज ब्लड, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो यूट्रस की में जो यूट्रस जो रफ होगी, रफ होने से मुराद ये है कि उसकी वैक्यूलराइजेशन नहीं हुई है और ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या करेंगी, ब्लड को रिलीज करेंगी, एंड विच एग्जिस्टेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल, और जिसको जो है बॉडी से रिमूव, फीमेल बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जिसकी वजह से इस साइकिल, इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। कि आपने अब ये बात याद रखनी है कि बेसिकली ये जो प्रोजेस्टेरोन है इसको हम जो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हो सबसे पहली बात तो ये है कि एस्ट्रोजन भी फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हो गया, एग की एवोल्यूशन के लिए हो गया। अब जब बॉडी के अंदर एग मौजूद है लेकिन उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, मतलब प्लेसेंटा नहीं बन रहा, तो क्या होगा कि आपके पास जो प्रोजेस्टेरोन है उसका जो लेवल ऐसा कम हो जाएगा। जो अगर जो प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यूट्रस की वाल रफ और जो ब्लड वेसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो जो है ब्लड को, जो जारी बात है जब रफ वैक्यूलराइजेशन का मतलब ही यही है कि ब्लड वेसल्स और वो जो है कवरिंग कर रही थी यूट्रस की वाल को, थिकनिंग कर रही थी यूट्रस की वाल को, अब थिकनिंग ऑफ द यूट्रस वाल नहीं हो रही बल्कि अब क्या होगा, उसकी लाइनिंग जो होगी वो कमज़ोर हो जाएगी और उसको ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इससे क्या मुराद है कि ब्रेक डाउन ऑफ दी ब्लड वेसल्स हो गया, जिसकी वजह से जो गंदा खून है वो क्या होगा, बॉडी से क्या किया जाएगा, फीमेल की बॉडी से, और जिसमें एग है और जो गंदा खून है वो क्या होगा, बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, और इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और अगर हम प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो क्या हो जाएगा कि उसकी यूट्रस की वाल को थिकनिंग कर दी जाएगी, और जैसे उसकी यूट्रस की वाल थिकनिंग हो जाएगी तो क्या होगा, प्लेसेंटा जो है वो आपका जो प्लेसेंटा है वो सारी बात है वो मेंटेन है कि वो अपनी जगह पर वो यूट्रस की वाल के साथ अटैच रहेगा, और उसको जो है क्योंकि जो वस्कुलराइजेशन हुई है जिसको हम कह रहे हैं कि यूट्रस की वाल जो थिक होगी जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, तो उसको क्या होगा, ऑक्सीजन और मुख्तलिफ जो फूड वगैरह मिलते रहेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। और अगर किसी भी स्टेज पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी तो जिसकी वजह से जो है वो फीटस का जो लिंक है वाल ऑफ द यूट्रस के साथ वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाएगा या एबॉर्शन करनी पड़ेगी। तो ये तो था प्रोजेस्टेरोन के मेजर फंक्शन के बारे में कि कैसे ये फीमेल बॉडी के अंदर वर्क करता है और कैसे जो है प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान कैसे वर्क करता है और नॉन प्रेगनेंसी के दरमियान ये कैसे वर्क कर रहा होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेल गोनेट्स किया टेस्टिस के बारे में करते हैं कि ये कौन सा हार्मोन जो है रिलीज करता है। बेसिकली जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन, और आपको ने प्रीवियस लेक्चर में भी आप पढ़ चुके हैं कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो टेस्टिस के वो टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस करते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दी जो है आपके ये ICSH हार्मोन जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है रिलीज होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी मदद से जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच आर रिलीज फ्रॉम, ये जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है विच आर रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, ये भी क्या है, ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को जो है डेवलप करता है एट प्यूबर्टी, जैसे हम प्रोडक्शन ऑफ द हेयर्स एट हिडन प्लेसेस जो है ना, हिडन प्लेसेस पे जो है वो क्या करेगा, हेयर्स वगैरह जो है
उधर जो है उनकी ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल आर्म पिट्स वाइज को जो है हैवी कर देगा, और जो सेकेंडरी सेक्स डिज़ायर है, एग्रेशन है, उसको डेवलप करेगा। तो ये तो था जो है टेस्टोस्टेरोन के बारे में कि टेस्टोस्टेरोन जो है मेजर क्या फंक्शन करता है मेल के अंदर, और जो बेसिकली ये भी जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो है मेल के अंदर डेवलप करता है। ये यहाँ पे प्लेसेस है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और जो आपने ये बात याद रखनी है कि ये आज जो है हमने दो जो है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने जो है एड्रीनल ग्लैंड और गोनेड्स जो है उनके बारे में डिस्कस किया कि वो कैसे जो है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो हमारी जो है कौन कौन सी जो बॉडी के ऑर्गन से उधर एक्ट कर रहे हैं, और कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं, और कैसे वो हमारी बॉडी में जो है चेंजेस आ रही हैं। तो ये तो था एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट टाइम जो है हम फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टाइम जो है इसका में जो आपका आखिरी टॉपिक है वो फीडबैक मैकेनिज्म है, और उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।